اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ یونس آیت نمبر 53 اینڈ 54 دو آیت پڑھنے جا رہے ہم. آیت نمبر 53 وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. اب یہ 53 نمبر کی جو آیت ہے یہاں پر یہ بات ان لوگ کی ختم ہو رہی ہے کہ جہاں پر ان لوگوں کا ہم پڑھ رہے تھے جو 47 کی آیت تھی وہاں سے 53 تک کا جو اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں کافر اور مشرکوں کے بارے میں جو اللہ نے کہا. تو اب یہاں پر 53 جو ہے یہاں پر یہ رکوع بھی ختم ہوتا ہے پانچواں اور یہاں سے پھر 54 سے چھٹا رکوع چھٹا سیکشن سٹارٹ ہوتا ہے سیکشن نمبر 6 اور یہ 53 ہے جہاں پہ مطلب پانچواں رکوع ختم ہو رہا ہے سیکشن نمبر 5 ختم ہو رہا ہے یہاں پہ. تو یہ اب انہی لوگوں کے تعلق سے ہے اب کہ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ تو نبا کا مطلب ہے خبر. تو وَيَسْتَنْبِئُونَكَ ان لوگ آس کر رہے ہیں نا یستا تو آس کر رہے پوچھ رہے ہیں آپ سے. تو اے یا نبی یہ دیکھو یا رسول اللہ یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ حق ہے یعنی کہ احقن ہو یعنی کہ کیا وہ جو تم بتا رہے ہو خبر تو کیا وہ سچی ہے از دیٹ ٹرو. یعنی ان لوگ ایک طرح سے مذاق اڑا رہے تھے کہ بھئی پنشمنٹ ہے اللہ کی آئے گی ریزریکشن ہوئے گا پھر اللہ کا عذاب آئے گا تو جو بھی جو تم نے کیا اس کا تم کو تو دیکھو مت کرو. تو لوگ مذاق اڑاتے پوچھ رہے ہیں آپ سے. تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے یا رسول اللہ یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں تو کیا یہ سچ ہے. تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت ہی پاورفل آیت ہے یہ ویسے اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کہہ رہا ہے کہ قل کہو ان سے ای وربی یعنی کہ ہاں بالکل اور وربی یعنی میرے رب کی قسم وربی انہو لحق یعنی کہ اللہ یہ جو جواب دلوا رہا ہے ان سے مگر اللہ ہے نا جو یہ ورڈز دے رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں کہ کہو ان سے ہاں بالکل اور میرے رب کی قسم انہو لحق یہ بالکل سچ ہے. یعنی تم جس کو سمجھ رہے ہو کچھ مذاق اڑا رہے ہو یہ حق ہے سچ ہے. وما انتم بمعجزین اور تم جو ہو عاجز نہیں کر سکو گے فرسٹریٹ نہیں کر سکو گے تم نہیں کر سکو گے. یعنی تم چاہے جتنے بھی کر لو موکری کرو مذاق اڑاؤ جھوٹ مانو مت مانو ریجیکٹ کرو رد کرو جو کرنا ہے کر لو لیکن تم فرسٹریٹ نہیں کر سکو گے عاجز نہیں کر سکو. وما انتم بمعجزین یہ بہت ہی یعنی بولتے نا ایک زبردست ہے یہ آیت. They seek to be informed by thee. Is that true? Say, yes, by my Lord, it is the very truth. And you cannot frustrate it. یہ اتنی چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس میں اللہ کا جلال ہے بہت زبردست. یہاں پر اب پانچواں جو سیکشن ہے وہ ختم ہوا رکوع نمبر 5 اور یہاں آیت نمبر 54 جو سٹارٹ ہو رہی ہے وہاں سے شروع ہو رہا ہے سیکشن نمبر 6 یعنی کہ چھٹا رکوع. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ تو پھر جن نفسوں نے یعنی سول نے جس جان نے جن انسانوں نے جو بھی ظلم کیا ہے
वलौ अन्ना लिकुल्लि नफ्सिन ज़लमत यानी कि वो जान, वो सोल, वो रूह जिसने भी दुनिया में जो भी जुल्म किए हैं, गुनाह कमाए हैं, मा फिल अर्दे जमीन पर, तो उनके यानी जमीन पर एक्चुअली वो है कि जो, सॉरी मैंने इसको कनेक्ट यहाँ कर दी ना, ऐसा है कि जैसे वलौ अन्ना लिकुल्लि नफ्सिन ज़लमत, तो वो लोग उस वक्त जिन्होंने जुल्म किया था वो लोग कहेंगे माफिल अर्दे लफ्तदत बेही, कि जमीन के ऊपर जो कुछ भी है, समझो कि पूरी जमीन ही समझो उनकी जायदाद है, या समझो बड़े से बड़े फिरौन की बादशाहत, फिरौन जैसे सुपर पावर था, तो ऐसे ही आद थे सुपर पावर, हाँ वो अपने टाइम पे, तो ऐसे तमाम जो भी लोग हैं या उनके पास दुनिया के जो भी जायदाद, जागीरें और दुनिया भर का राजपाट, बादशाहत जो भी उनके पास है, तो वो जो है माफिल अर्दे लफ्तदत, वो उसको फिदिया बना के रैंसम करने के लिए, अपनी जान को छुड़ाने के लिए बोलेंगे, उसको यूज करने के लिए, लफ्तदत बेही, उससे यानी वो जो उनका पूरा माल और दौलत है वो सबकी सब देने के लिए तैयार है। दुनिया में एक ढेला भी नहीं दे सक रहे थे, दुनिया में तुमको थोड़ा सा भी देने को बहुत ही भारी पड़ रहा था, लेकिन वहां पर बोलेंगे सब ले लो, हमारा सब ले लो, सब पूरा, सब खजाने के खजाने ले लो, जमीन और जायदादें ले लो, जो लेना है ले लो, लेकिन प्लीज इसको हमारे लिए, ये हमारा फिदिया कबूल कर लो, ये हमारे लिए रैंसम है, हमको छुड़ा दो, हमको प्लीज छुड़ा दो इनसे। ये करेंगे उन लोग। वो असर्रुन नदामता, और वो छुपाएंगे अपनी नदामत को, यानी नदामत क्या है, शर्मिंदगी। तो जो उनको मालूम है हमने गलत काम किया है, हमने गुनाह कमाए हैं, हमने दुनिया में रह के कुरान की बात को नहीं सुना है, जो अल्लाह का मतलब कलाम है, अल्लाह के अहकामात है, उसमें हुक्म है अल्लाह के, हमने वो नहीं सुने, हमने कुछ नहीं सुना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पे ध्यान नहीं दिया, न माना उसको, न उस पे अमल किया, तो अब उन लोगों को है ना वो अपनी जो शर्मिंदगी है ना, जो उनको बेइज्जती और जिल्लत, नदामत, वो उनको छुपाने को होता है कि हम ज्यादा सबके सामने और खुल न जाए, कि यानी जैसे कि देखो हम तो मतलब अपनी मतलब इस पर आ गए हैं, कि वह असर्रुन नदामत, तो वो छुपा रहे अपनी नदामत को। लम्मा राउल अजाब, तो जब उन्होंने राउल अजाब यानी जब उन्होंने देखा, रा मीन्स देखना है, तो जब उन्होंने देखा अजाब को, तो अजाब को देखने के बाद तो उनको पता चल गया कि अजाब थोड़ी कोई सामने से कोई आ रही है, कि कोई बादल आ रहा है और बोलेंगे कि अरे अजाब आ रहा है, या कोई ऐसा अजाब बन के कोई चीज आ रही है, ऐसा नहीं है। अजाब आता है इंसान के ऊपर और वो उसको मालूम पड़ता है ये अजाब आ गया, तो उस वक्त वो अपनी तमाम गुनाह के ऊपर उन लोग नादिम है, नदामत, तो वो अब उन लोग को छुपाना है ताकि खुल के बताए नहीं। लेकिन फिर असर्रू जो वर्ड है अरबी का, उसके दो मीनिंग होते हैं ना, कभी एक ही कि मतलब डिक्लेयर करना भी होता है, कि अपनी शर्मिंदगी को वो डिक्लेयर कर रहे हैं, मगर एक छुपाना भी होता है, कंसील करना। तो असर्रुन नदामत लम्मा, जब राअउल अजाब, उन्होंने देखा अजाब को, वकुजिया बैनहुम बिलकिस्त, तो उनके बीच चुका दिया गया यानी फैसला कर दिया गया अदल और इंसाफ के साथ, बिलकिस्त जस्टिस, यानी पूरा उनके साथ कर दिया गया कि लो अब ये तुम्हारा हिसाब चुकता, तो अब ये उनके साथ कर दिया गया बिलकिस्त, वहुम ला युज़लमून, और उनके ऊपर कोई भी जुल्म और ज्यादती नहीं की जाएगी। अगर उन पे कोई अजाब आया है तो यकीनन वो उनके किसी गुनाह की वजह से ही आया है। अल्लाह किसी के ऊपर जबरदस्ती का जुल्म नहीं करेगा, वहुम ला युज़लमून, और उन पे कोई जुल्म नहीं किया गया, ये उन्हीं की कमाई थी, मेहनत की कमाई। चोर भी तो मेहनत करता है ना, डाकू भी मेहनत करता है, तो जो भी होते वो उनको चोरी डाकू जो भी होते सबको मेहनत बहुत करनी पड़ती है बुरे काम के लिए भी, तो वो बुरे काम के भी मेहनत करके कमाए थे ना उन लोग ने, है ना, इतनी मेहनत से बेचारे लोग ने कमाए थे, तो अब उसका सिला कुछ तो मिले। तो ये मिलेगा कि अब उनको आखिरत में अल्लाह उन पे कोई जुल्म नहीं करेगा, लेकिन एक जस्टिस जो है वो जरूर करेगा, ताकि उन्होंने जो दुनिया में कमाई की उसका बदला उनको मिले, जो हमने इससे पहले की आयतों में पढ़ा। Every soul that has sinned, if it possessed all that is on earth,
would fain give it in ransom. They would declare their repentance when they see the chastisement, but the judgment between them will be with justice, and no wrong will be done unto them. इसकी जो नोट है 1445, declare their repentance, वो असर्रू जो वर्ड है, तो declare, the verb in the original is असर्रू. तो असर्रू जो वर्ड है, अरबी के वर्ड्स जो होते हैं उनका बहुत वास्ट मीनिंग होते हैं. तो यहां पर विच मे मीन ईदर डिक्लेयर और रिवील, यानी डिक्लेयर और रिवील, ये भी एक मीनिंग है उसका असर्रू का, और एल्स कंसील और हाइड, ये भी उसका मीनिंग है. द क्लासिकल कॉमेंटेटर्स आर डिवाइडेड एज टू द मीनिंग टू बी एडॉप्टेड हियर. तो जो भी बहुत क्लासिकल यानी कि मतलब जो कमेंटेटर्स है मुफस्सिरीन, तो वो लोग जो है इसमें इस मामले में जैसे थोड़े तकसीम हो गए हैं कि कोई उसको डिक्लेयर लेता है और कोई उसको कंसील लेता है. इफ द फर्स्ट मीनिंग बी टेकन, द सेंस वुड बी व्हेन द पेनल्टी स्टेयर्स द सिनर्स इन द फेस, कि जब सजा जो है अजाब पेनल्टी वो उसके चेहरे पे, यानी कि मतलब गुनहगार के चेहरे पे, उसके चेहरे पे देख रही है, यानी कि पेनल्टी आई अभी, यानी सजा आई और वो उसके चेहरे पर ही देख रही है. दे वुड गिव एनीथिंग टू एस्केप इट. तो वो लोग सोचेंगे बाप रे, ये तो अभी हमारी तरफ ही, जैसे कोई घूर घूर के देख रहा हो शेर सामने और उस घूर रहा हो तो कैसा लगेगा. तो इसी तरह से वो अजाब पेनल्टी जो है, तो अब उन लोग को ऐसा लगता है कि उन लोग हम कुछ भी दे देंगे अपने आप को बचाने के लिए, हम सब कुछ दे देंगे दुनिया का. एंड दे वुड इवन ओपनली डिक्लेयर देयर रिपेंटेंस, और वो लोग अपने रिपेंटेंस को, अपनी तौबा को खुल्लम खुल्ला और नदामत को डिक्लेयर करेंगे, विच वुड बी अ सोर्स ऑफ शेम एंड इग्नोमिनी टू देम. तो वो जो चीज है, जब उनको डिक्लेयर करने वाली बात आएगी कि हम अपनी तमाम गलतियों के ऊपर नादिम है, नदामत की बात आएगी, तो फिर अब वो है उनके लिए जरिया बन गया ना, कि जो उनको मतलब बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही बेइज्जती और जिल्लत वाला जो उनके लिए बन गया, यानी कि मतलब बहुत ही रुसवाई, बेइज्जती. इफ द लेटर मीनिंग बी टेकन, लेकिन अगर समझो कंसील और हाइड का मीनिंग लेते हैं, द सेंस वुड बी दे वुड गिव एनीथिंग टू एस्केप द पेनल्टी. उन लोग अपनी जो भी सजा से बचने के लिए बहुत कुछ भी दे सकते हैं, बट द हार्डेस्ट थिंग ऑफ ऑल फॉर देम इज फ्रैंकली टू कन्फेस एंड रिपेंट. यानी मगर उनके लिए सबसे बहुत मुश्किल जो बात थी वो ये थी कि बहुत ही खुले आम उसको तुम कबूल करो कि हाँ हमने दुनिया में ये गलत काम किया है, हमने दुनिया में ना ये ऐसे ऐसे सब मतलब बहुत सारी हरकतें करे हमने, वो बोलना, उसको कन्फेस करना, कबूल करना, और फिर उसके ऊपर तुम नादिम होना अपने गुनाह के ऊपर, और फिर उस पर तुम तौबा इस्तगफार करना, ये उनको ज्यादा भारी था. एंड सो दे कंसील देयर सेंस ऑफ शेम एंड इग्नोमिनी. तो उन्होंने सोचा बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होगी, बहुत ज्यादा रुसवाई और बेइज्जती होगी, तो उनको वो चीज नहीं पसंद थी, तो इसलिए उन्होंने छुपाना ज्यादा समझा. पर दोनों ही हाल में ये बात याद रखो कि वो लोग दोनों ही हाल में, जो छुपाने वाले थे वो भी और जो खुल्लम खुल्ला मतलब कबूल करने वाले वो भी, दोनों ने बोला हम अपना सब कुछ देंगे अपनी पेनल्टी से बचने के लिए. अल्लाह हमको ये तमाम सीन्स इसलिए बताता कि ये चीजें जो है वो अल्लाह के इल्मे गैब में है सब कुछ. अल्लाह सब कुछ देख के बैठा है कि कौन क्या क्या करने वाले हैं. तो अल्लाह ने हमको कुरान में सब बातें बताई है ताकि अगर हम इसको पढ़ के अपने आमाल में चेंज लाते हैं और हम सुधर जाते हैं तो ये ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अल्लाह ने हमको इसीलिए ये सब चीज सीन बाय सीन बयान किया है.